Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So last night, SBI has announced deferment of exam of SBI Pre 2021 for junior associate. Now, this gives additional time for candidates to prepare. Some candidates are still worried whether this exam will happen at a short notice or they may revoke the notice and conduct the examination. First thing, we should put all this speculation to rest. Conditions of last year were totally different than current year. Last year in none of the day number of cases crossed 1 lakh. And there was a clear-cut declining trend in number of cases when exams resumed in the month of September. This year, throughout the month, number of cases were well above 1 lakh. Still, with declining number of cases, the number of cases are 1.26 lakhs as yesterday. Second, there is a lot of difference between last year and this year. Last year, SBI Junior Associate held the pre-examination in the month of February and March first week. And during that period, there was no COVID or any such situation. Only lockdown started from the middle of March or last week of March last year. So people had their pre, then they waited for the result. From the result date, mains were held thereafter. But candidates got more than 6 months time between pre and main. The people, those performed well, I told them to prepare for mains and they prepared for mains thick and thin. This time the story is different. The pre is delayed. Main is still planned on the same date. And if that happens, that means after appearing in pre, you will have very less time to prepare for mains. Last year, after appearing in pre, people got ample time to prepare for mains. Some people say result was announced and within 10 days exam were held. No, that is not the time available. Time available is when your pre is over and when main is held. So the candidates got lot of time last year between pre and main. So the situation is totally different. It is not same. So don't compare two situations. This is one. So this time, as exams are now likely to resume from July onwards, let's focus on study. Don't waste our energies on divergence. 1 minute. अरे देख लिया करो, कोई तो देखा करो। कौन है? देख ले भाई, को काम वाली आई है। So this time we have to focus on study, and the moment environment is conducive to conduct the exams, the agencies will conduct the exam. Second question haunting the mind of people is whether this will affect the RRB notification. In my opinion, it will not. IBPS will roll out its plan. They will try to conduct examination as per plan in the month of August if conditions improve. So the only caveat, the only important factor that will determine future
exam dates is the condition that is prevailing in the country. As far as these agencies are concerned, they will remain exam ready to conduct the exam. Similarly, candidates should also remain exam ready because exams will happen. It may be delayed, it may be on time, but these will be held. Last year also, although exams were held late, but they completed the process well within time. So we are focusing on 6 exams. Continue your preparation for 6 exams and remain exam ready. That is my advice. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. कल SBI का नोटिफिकेशन आ गया और उसमें उन्होंने बताया कि जून के माह में वो एग्जाम प्री का नहीं करवा रहे, जिससे अब निगाहें हमारे पहुंच गई हैं कि जुलाई ऑनवर्ड्स ये एग्जाम होगा. इस पे काफ़ी लोग आप चर्चा भी कर रहे हैं और कमेंट्स जो मैंने पढ़े उसमें कुछ बातें निकल के आ रही हैं. उसी विषय पर एडवाइस देने के लिए ये वीडियो बनाई गई है. कुछ लोगों के मन में है कि ये नोटिस फिर विड्रॉ हो जाएगा, अचानक एग्ज़ाम हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा. देखो, ये सब अनफाउंडेड फियर्स हैं. लास्ट ईयर की सिचुएशन और इस साल की सिचुएशन में बहुत अंतर है. लास्ट ईयर जब एग्ज़ाम्स करवाए गए तो SBI जूनियर एसोसिएट का एग्ज़ाम फरवरी एंड और मार्च के शुरू में हो गया था प्री, पर उसका रिजल्ट डिले हुआ था. दैट मीन्स जो मेन का एग्ज़ाम जब हुआ और जो प्री का एग्ज़ाम हुआ उसमें बहुत अंतर था, मोर देन 6 मंथ्स का. और कैंडिडेट्स को सफिशिएंट टाइम मिला मेन की तैयारी करने के लिए, क्योंकि जिन लोगों का प्री अच्छा हो गया था या एवरेज भी हुआ था, जो हमने कट ऑफ की प्रिडिक्शन वीडियोस डाली थी और उसमें आपको लगातार ये कहा था आप तैयारी करते रहिए, रिजल्ट की वेट मत करिए, उससे काफ़ी लोगों ने मेन की तैयारी करते रहे और इसलिए वो मेन में अच्छा भी परफॉर्म कर पाए और वो अल्टीमेटली सक्सेसफुल भी हुए. इस बार डिफरेंस क्या है? इस बार अभी प्री नहीं हुआ और जब तक प्री नहीं होता तो कैंडिडेट की ज़्यादा फोकस प्री पे रहती है, तो उसकी मेंस की तैयारी हल्की रहती है. तो क्योंकि प्री डिलेड हो गया और मेन की डेट डेफर नहीं हुई, तो जो इस बार सिचुएशन है वो ये है कि आपको प्री और मेन के बीच जो गैप है वो कम मिलेगा. और क्योंकि वो कम मिलेगा इसलिए जो कैंडिडेट शुरू से मेन की तैयारी नहीं करेंगे वो डिसएडवांटेज पे रह सकते हैं. तो इस अंतर को समझना है. तो मुख्य जो फर्क है पिछली बार और इस बार के अंदर वो ये है कि जो गैप बिटवीन प्री एग्जाम एंड मेंस विल श्रिंक अगर SBI मेन की डेट डेफर नहीं करता. प्री की संभावना अब जून में होने की नहीं है, इस डर से बाहर निकल जाइए. क्यों नहीं है? क्योंकि लास्ट ईयर और इस साल की कंडीशंस में बहुत अंतर है. सितंबर से जब एग्ज़ाम रिज्यूम हुए तो नंबर ऑफ केसेस का जो ग्राफ था वो डिक्लाइन हो चुका था और किसी भी दिन 1 लाख से ऊपर केसेस नहीं गए थे. इस साल अप्रैल के पूरे महीने में एक दिन भी 1 लाख से नीचे केसेस नहीं आए हैं. अभी भी जो गिरने के बाद 1,26,000 केसेस हैं. तो इसलिए जो स्थितियां हैं वो डिफरेंट है, इसलिए दोनों को डिफरेंट प्रिटेक्स्ट में देखना है हमें. पर ये पक्का है कि जो भी बोर्ड है, IBPS हो चाहे स्टेट बैंक हो, वो एग्ज़ाम रेडी रहेगा. जब भी कंड्यूसिव माहौल होगा वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे. पर ये एग्ज़ाम आपके जुलाई ऑनवर्ड्स ही होंगे. तो जून वाला फियर मत रखिए बेमतलब, पर तैयारी करते रहिए क्योंकि फजूल की टेंशन रखने से हमारी पढ़ाई हैम्पर होगी. अननेसेसरी फियर मत रखिए कि लास्ट ईयर IBPS ने पहले डेफर कर दिया फिर एडमिट कार्ड इशू कर दिया. ठीक है, जो भी उन्होंने किया, अच्छा किया बुरा किया, अब वो हिस्ट्री है. पर अभी जो उन्होंने स्टेट बैंक ने अगर मई एंड में ये नोटिस निकाल दिया कि जून की डेट्स डेफर हैं, इसका मतलब जून में उनको कोई भी डेट पे वो एग्ज़ाम नहीं करवाना चाहते.
अदरवाइज अगर जून में एग्जाम कराना होता तो ये नोटिस निकालने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि डेट तो उन्होंने पहले कोई अनाउंस ही नहीं की हुई थी। जून के आखिर दिन भी कर सकते थे, तब भी पुराना नोटिफिकेशन चलता रहता। अगर उन्होंने नोटिस निकाला है तो वेल थॉट ऑफ डिसीजन है एसबीआई का कि जून में शायद वो नहीं करवा पा रहे, और जुलाई के अंदर कब होगा, मेन डेफर होगा कि नहीं होगा, वो प्री की डेट्स पे डिपेंड करेगा। अभी तक मेन की डेट स्टैंड करती है। तो एज ए कैंडिडेट मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एग्जाम की तैयारी करना चाहिए, और इस बार मुझे मेन को फोकस करके तैयारी करना चाहिए, क्योंकि अब जो मेरे पास अवेलेबल टाइम है मेन के लिए 2 महीने हैं। प्री भी मुझे तैयार करना है, पर मेन पे मुझे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इस साल ऐसा हो सकता है कि मुझे प्री और मेन के बीच कुछ दिनों का ही गैप मिले, और उसके अंदर जनरल अवेयरनेस जैसे सब्जेक्ट को कवर करना मुश्किल हो जाए। तो अभी से हमें इसको साथ लेके चलना पड़ेगा, और इसीलिए हम जो स्टडी प्लान आपको बना के दे रहे हैं उसमें लगातार जनरल अवेयरनेस को डे 1 से ही कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चिंता छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।